सुकर चुके हैं नौजवान महंगाई में जुबान सीधा कर ले हमारे प्यार पर मांगे पंछी का Assalamu alaikum everyone. Welcome to TPR for episode number 74. हमारे साथ हैं शकीब from SKMS and Hello, Shakib. yeah, we're going to talk about cars and Yeah. a lot of other stuff Yeah. and about Arab unity. Arab Unity. And Quick introduction. Shakib is a very old friend of mine और हमारी दोस्ती हुई थी जब हम दोनों नया दुबई से पाकिस्तान मूव हुए थे और नॉट इवन जस्ट पाकिस्तान सिटी स्कूल मूव हुए थे इन सिटी स्कूल गुलशन क्लास 9 में आई थिंक मैं शायद 1-2 दिन पहले आ गया था और मैं एक बड़ा अजूबा था कि अच्छा ये दुबई से आया है फिर थोड़े दिन और गुजरे फिर शकीब भी आ गया मैं अरे तो हमारी सुपर दोस्ती हो गई ऑन द बेसिस के वी वर फ्रॉम बोथ फ्रॉम दुबई और पाकिस्तान हमें Yeah. थोड़ा डिफरेंट लग रहा था और yeah that's how and we've been friends since what 2001 I suppose 2000 Yes. 2000 Wow. class 9 2000 August. हाँ August September, 2000 yeah wow, so काश हम भी तब मिल लिए होते अली. I think हम एक दूसरे को शायद पसंद ना करते हाँ, yeah. very likely Yeah. Very likely. I was very different हाँ. then. Yeah. But of course इसका ये मतलब है कि शकीब दुबई से था तो मैंने पूछा तुम कौन से स्कूल से थे and there the connection with you comes कि he was Yeah. in Arab Unity like you तो Wow. जरा आप जांचें एक दूसरे को कि आप कौन से Yeah, batch, that कौन is से section में lovely. थे I don't know you from school, which is weird. No, so I was in Arab Unity from 92 till 2000, and I Okay. joined in grade 1, and I left Arab Unity in grade 8, senior 2. हम्म लेकिन तुम So senior 2, Wow. senior 2 was So you 99 were- 2000. You were अच्छा, so you were probably my junior. probably, I think was तुम हमसे एक साल आगे हो I was senior 5 in 2002. So Senior करीब 5 in करीब ही थे. 2002. हाँ तो आप करीब करीब थे, yeah. senior एक साल 3 में से. होंगे in Yeah. हम्म But I guess Okay. we all shared like Mohan Raj and Mrs. Gomes Yes, and yes, all that. yes, Yeah, yes. for sure. Yeah. Oh my God. My Wow. my last class teacher was Mrs. Devakaran. Oh my, she was in Uh, my bus. She was in my fucking bus throughout. She was in my bus too. What? I was in 20 number bus. I was in 20. What the oh no Rizwan गालियाँ So, the Divakaran lived What's in your full Al-Sham. name? Yes. Rizwan, Asif, Takhar. So, Divakaran lived in Al-Shab. I You- lived in you- Horalans. Sat next to Naveed. Yes, he was my senior. What the fuck? Why don't you I remember? used to sit right behind you. Oh my God. With my younger brother. मतलब नहीं देखो क्या? बॉटम लाइन ये है कि हमारी बस में सनम भी थी. Later. Now we're back after the break. तो हाँ ब्रेक में हमने ये पता किया कि रिजवान और शकीब की काफी कॉमनैलिटीज थी और रिजवान का जो पास्ट है ना वो अक्सर एपिसोड्स में रिवील होता है. I think this is the first time रिजवान का पास्ट was revealed by someone who is not रिजवान. तो glimpse मिली. But खैर this episode is about शकीब and it's about शकीब because you know मैं कोई मौका नहीं छोड़ता मैं अपने दोस्तों को बुलाने का on the podcast. For once a friend of mine has done very cool and interesting things. Usually तो हम ऐसे ही आ जाते हैं. But Shakib, Oh, I'm your friend too. Like I'm really cool. Yeah. Okay. अच्छा हाँ शकीब. तो शकीब की खासियत ये थी कि लॉन्ग टाइम बैक हम दोनों मुझे गाड़ियों का शौक था मुझे इंटरेस्ट था शकीब का एंड आई थॉट अच्छा शकीब को भी है अच्छा ठीक है बट शकीब का गाड़ियों का इंटरेस्ट वाज 78 टाइम्स जो मुझे था इंटरेस्ट क्योंकि वो गाड़ियों में इंटरेस्ट था मतलब मैं वो था कि अच्छा हाँ आई नो ब्रांड्स और मुझे कुछ पसंद है
शकीब को मतलब गाड़ी खोल बंद कैसे होती है सब कुछ बचपन से कलेक्टिंग मॉडल कार्स और ये और वो Wow. एंड he is one of those people who has managed to turn something that he was just interested in hobby ke taur pe or whatever, and he's turned it into like a big actual occupational part of his life. So and that part of his life is called SKMS, the very amazingly named Shakib Khan Motor Syndicate, हम्म which was started. I was there at the time जब ये start हुआ. I think मैं पाकिस्तान में ही था ना 2010 में निकला हाँ हूँ हाँ मैं. तो बिल्कुल हाँ उस वक्त ये Facebook ग्रुप था. तो I'll give the introduction अपनी तरफ से, and then Shakib can correct and follow on as Yep. necessary. बट हुआ ये था कि गाड़ियों का शौक था. अच्छा गाड़ियों का शौक है, फिर अब गाड़ियों का शौक है तो गाड़ियों का काम, मेंटेनेंस, ये वो ऑल दैट शिट, कौन सा मैकेनिक अच्छे हैं, कौन नहीं है, कहाँ से क्या काम हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. इसका एक आई थिंक इनिशियल आइडिया जहाँ तक मुझे याद है वो ये था कि वी कैन मेक अ नेटवर्क ऑफ लाइक इनिशियली ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर्स. क्योंकि अक्सर Yeah. लोग जब किसी को शौक होता है तो पीपल स्टार्ट आस्किंग यू कि अच्छा है कि तुम्हें गाड़ियों का बड़ा पता है, मुझे बताओ मैं यहाँ से कहाँ कराऊँ. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और उन लोगों के पास फिर मैं भी जाता था अपनी 4 लाख की ऑल्टो लेके, जिसका हमने पिछले एपिसोड में बात की है. और वो उसके थ्रू फिर पता चला कि शकीब जो थे ही वाज नॉट जस्ट मीटिंग दिस पीपल एंड रिकमेंडिंग देम. शकीब ने उनके साथ वक्त भी गुजारा था. एक बहुत अलमशहूर आदमी थे उस ज़माने में, रमज़ान भाई. और रमज़ान भाई के उस पे एट से हिज वर्कशॉप शकीब साहब ने बड़े बड़े कारनामे किए थे. इंजन पूरी टेकिंग अपार्ट, पुटिंग इट बैक टुगेदर, लाइक डीप स्टफ. ये नहीं था कि मुझे गाड़ियों का शौक है, मेरे को गाड़ियों का Yeah. शौक था. तो और उसके बाद वो बढ़ता गया. एंड देन आहिस्ता आहिस्ता देन देयर वाज लाइक एन एक्सपेंशन. क्या करें, अच्छा जी लो फेसबुक ग्रुप बना. एंड देन देयर वर थिंग्स लाइक ऑफरिंग सर्विसेज टू पीपल के पास. आपको गाड़ी ठीक करानी है, गाड़ी का मसला है, सर्विस करानी है, यू डोंट नो वेयर टू गो, वी विल कम टू योर हाउस, टेक योर कार, गेट इट फिक्स्ड, ब्रिंग इट बैक. इस तरह से था. फिर obviously we parted ways in the thing. I was never really contributing in any major respect. मैं ग्रुप पे गाड़ियों की वीडियोस शेयर कर देता था. और फिर ये हुआ कि मैं चला गया एंड एक और साहब थे वो भी चले गए पाकिस्तान छोड़ के. एंड आई थॉट कि अच्छा ठीक है, अभी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है. फिर कुछ अर्सा गुजरा मैं देखा हूँ अच्छा अब शेल का कोई entrepreneurial awards हो रहे हैं. उस शकीब साहब वहाँ जाने, what is happening, ये क्या हो गया एकदम से IBA में हो रहा है. and मतलब status I wasn't following up on it, but मेरे पीछे एकदम से status had exploded of SKMS. तो शकीब I think now it's best कि आप ज़रा take over करें और बताएं कि ये idea शुरू कहाँ से हुआ था, and what were some of the major मुश्किलें and milestones. So the best part of this session is कि ये पहली दफा कोई बड़ा casual candid sort of an interview हो रहा है और हमेशा इतने प्रोफेशनल और इतना फॉर्मल सेटिंग में होता है कि वो तो मुझे रटा हुआ है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है. तो my first toy car was a dark red Jaguar जो मेरे अब्बा ने मुझे ला के दी थी और वो हॉट व्हील्स की थी उस जमाने में. जो मुझे पता भी नहीं था कि हॉट व्हील्स की है, लेकिन मेरे पास वो अभी तक प्रिजर्व्ड है, उसका पेंट उतर गया. और व्हाइल आई वाज ग्रोइंग मैं उसको वाटर कलर से पेंट कर दिया करता था कि अब मुझे ब्लैक चाहिए और अब मुझे डार्क ग्रीन चाहिए और अब मुझे येलो चाहिए. तो मैं उस हिसाब से उसको थिनर लगा के रंग उतार के और नया रंग कर दिया करता था. सो दैट वाज माय फर्स्ट एवर टॉय कार जिससे मुझे और ये कब की अटैचमेंट बात हुआ. है, कितने बड़े थे तुम? आई गॉट सो आई वाज बोर्न इन 87. आई गॉट माय फर्स्ट टॉय कार इन 88 अच्छा. और वो 88 सब तक मेरे पास. सो मतलब दिमागी तौर पे मुझे सबसे पहले गाड़ी कोई पसंद आई तो मेरे ख्याल से वो जैगुआर थी. एंड प्रोबब्ली व्हिच इज व्हाई आई ऑलवेज लाइक्ड कार्स दैट आर लो, लॉन्ग एंड वाइड. मुझे हैचबैक्स इतनी पसंद नहीं आती, मुझे 4x4s इतनी पसंद नहीं आती, मैं स्पोर्ट्स कार्स का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ. आई लाइक सेडान्स, आई लाइक लॉन्ग कार्स. फिर मैं अपने बचपन की स्टोरी सुनता रहता हूँ. सो वी यूज्ड टू लिव इन यूके ड्यूरिंग माय अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स. और माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि तुम एक दफा गाड़ी में बैठे, हम सब गाड़ी साफ कर रहे थे और एकदम गाड़ी चल पड़ी. पता चला शकीब साहब ने ड्राइव में गियर डाल के और गाड़ी चला दी और वो आगे जाके झाड़ियों में घुस गई. तो ये मेरा दूसरा कारनामा था. उसके बाद भी ये होता था कि जब तक गाड़ी साफ होती थी मैं स्टीयरिंग में झूला झूलता था, मैं खेलता रहता था गाड़ी के अंदर बैठा हुआ. मुझे गाड़ियाँ अमेज करती थी हमेशा.
ये भी मेरी एक चाइल्डहुड की स्टोरी है कि हम किसी के घर जाते थे, उनकी गाड़ी में अगर कभी बैठने को मिलता था, तो घर आने के बाद मैं एक पेपर पेंसिल लेके उसको स्केच किया करता था कि उसका इंटीरियर में ये बटन्स थे और उसका क्लस्टर ऐसा लगता था, उसका स्टीयरिंग का डिजाइन ये होता था, एंड आई वुड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट कि मैं आज इस तरह की गाड़ी में बैठा हूँ जिसका अंदर से लेआउट ये था, एंड दिस इज व्हेन आई वाज 3 years old। तो फिर हम पाकिस्तान आ गए, मैंने स्कूल जाना शुरू किया। फास्ट फॉरवर्ड 92 हम दुबई चले गए। वहाँ हमारे पास क्रेसिडा थी। उस Of क्रेसिडा को course. साफ करने के लिए क्रेसिडा दुबई में होना जरूरी होती है। क्रेसिडा को साफ करने के लिए मेरे अब्बा नीचे उतरते थे, मेरे बहन भाई साइकिल चलाते थे और मैं बस गाड़ी साफ करता था और उसके अंदर बैठा Wow. रहता था और उसमें Did it have a तो maroon interior? yes, so we had two Cressidas. The first one had a blue interior and the second one had a maroon interior because my father Wow. wanted a maroon one, Yeah. and वो maroon velvet seats। और Yes. आप दोनों Classic. दुबई वाले तो आप लोगों को याद Yeah. होगा, वो एक मिस्टर पॉपी का या सिल्वर परफ्यूम आता था उस जमाने में, Yes. ऊपर से फ्लैप खुलता था। वो मिस्टर पॉपी का परफ्यूम, वो खुशबू, वो मरून इंटीरियर Oh my मेरे God. दिमाग से निकलता है। Wow. Yeah. फिर गाड़ियों का शौक मेरा वहीं पे चलता रहा। आप दोनों दुबई वाले हैं तो मैं फिर आप लोगों को बताऊं कि गल्फ मेडिकल सेंटर एक हुआ करता था Yeah. ऑपोजिट निसान का शोरूम और मित्सुबिशी के शोरूम के बराबर में। Yep. तो गल्फ मेडिकल सेंटर में हमारे डॉक्टर बैठते थे। जब तक हमारा नंबर नहीं आता था मैं बराबर में कभी मित्सुबिशी के शोरूम में होता था, कभी मैं रोल्स रॉयस साथ था, सामने निसान वाले थे। तो मैं इन शोरूम्स पे घूमता हुआ आता था, तो मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाया करती थी और ऐसा कुछ बीमारियां फैलाते हुए शोरूम्स में हर गाड़ी में खास दिया जाके। कोरोना नहीं था। और मैंने उस जमाने की कुछ यादें निकाल के रखी हुई हैं। सो दिस इज अ पजेरो का ब्रोशर फ्रॉम दोज डेज। Oh shit. ये Oh. मैं गल्फ मेडिकल सेंटर गया और मैं वहां से पजेरो में बैठा तो ही Wow. मैं उसका कैमरा आगे लेके आ गया। फिर मैं एक दफा होंडा के शोरूम चला गया। ये उस जमाने की होंडा अकॉर्ड है। हाय ये तुम्हारे पास उस वक्त से रखे हैं? जी मेरे पास उस वक्त से रखे हैं। इनकी हालत तो काफी ये अच्छी है। 98 की होंडा ओडेसी। हाय Oh shit. अच्छा। ये मतलब आप समझ रहे हैं NSX भी होगी कहीं NSX। मुझे स्पोर्ट्स कार्स का शौक ही नहीं था उस वक्त। या मैं तो सेडान लवर था। खैर ये मेरे भाई ने खराब कर दिया, हम छोटे थे जाहिर है। ये होंडा CR-V उस जमाने में। नहीं, जब मैं कह रहा था ना कि मुझे गाड़ियों का शौक था लेकिन शकीब को गाड़ियों का शौक था तो आप ले गए। Yeah, this is तो so ये lovely. Yeah, हम्म। this is lovely. ये उस जमाने की कुछ यादें हैं जो हमेशा मेरे घर वाले फेंकने की कोशिश करते हैं और मैं किसी ना किसी तरह बचा लेता हूँ। मुझे तो था ही गाड़ियों का शौक, मेरे ख्याल से इट कम्स फ्रॉम माय फादर। तो माय फादर ऑलवेज प्लेड सेफ। उनको गाड़ियां जल्दी जल्दी बदलने का इतना शौक नहीं था। उनको ये था रिलायबल और डिसेंट एक तमीज की अच्छी सी गाड़ी हो जो मैकेनिक के पास ना जाए। उनको शौक इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनको ये था मर्सिडीज रखनी चाहिए और कोई लेक्सस LS400 होनी चाहिए। तो हम क्लासिफाइड्स देखते थे अक्सर शाम में, और कभी अगर अम्मी को किसी मार्केट जाने और साथ में उसी मार्केट के करीब कोई गाड़ी फॉर सेल है विच इज इंटरेस्टिंग, सो वी यूज्ड टू ड्रॉप मॉम एंड गो एंड चेक आउट द कार। तो इस तरह से हम कभी किसी लेक्सस में बैठ गए और कभी किसी मर्सिडीज में बैठ गए और इस तरह से हमने चेकिंग करते करते बहुत सारे शौक पूरे किए। सो 99 में माय मदर गॉट हर ड्राइवर्स लाइसेंस। हमने पजेरो खरीदी और पजेरो की मैंने कुछ चीजें रखी हुई हैं अपने पास अभी तक। तो सैडली वो हमारे पास 10 महीने रही और माय फादर वाज ट्रांसफर्ड बैक टू पाकिस्तान। वरना वो उससे मुझे मेरे ख्याल से भरपूर मोहब्बत आज तक जब किसी गाड़ी से हुई हो वो मेरी उस पजेरो के साथ थी। तो 10 महीने बाद जब ये गाड़ी बेचनी थी तो माय फादर वाज एट वर्क और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बस फोन अटेंड कर लेना और किसी को देखनी हो तो मुझे बता देना। एड्स के लिए फोन आते थे, उनमें से एक साहब आए थे, उनको गाड़ी चलानी थी। मैंने उनसे आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। मैंने उनसे पहले ये पूछा कि आप ऑफर कितना करेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं ये कहाँ से और क्यों पूछ रहा था। एंड अली को याद होगा मैं सिटी स्कूल में बहुत पतला सा छोटा सा बच्चा था, तो मैं जब 12 साल का होऊंगा तो मैं पता नहीं क्या होऊंगा। और मैं वो बड़े से अंकल थे, वो लैंड क्रूजर में आए थे। मैंने उनसे कहा ऑफर कितना करेंगे। ही गॉट ऑफेंडेड, वो चले गए। मुझसे कहा कि वेयर इज योर फादर। मैंने कहा ही इज एट वर्क। वो गाड़ी में बैठे थे, बात ही नहीं की।
खैर फिर एक और साहब का फोन आया, वो आए गाड़ी देखने के लिए। ही वॉज अ लेबनीज। उन्होंने मुझे आते ही अपना कार्ड दिया, वो उनका बिजनेस कार्ड भी इस फाइल में Oh लगा हुआ है। shit. ही वॉज ही वॉज he was a salesman at Monaco Shoes, Alwada Street, Sharjah. वो आए, उन्होंने मुझे बताया कि he is looking for a car for his mother, और वो उनको बर्थडे पे गिफ्ट करेंगे, and this car would go to Lebanon. तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे पूछा कि या so this will go out of Dubai? उन्होंने कहा yes. फिर वो गाड़ी के नीचे लेटे, उन्होंने गाड़ी वाड़ी चेक की अच्छी तरह से, उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई, और उन्होंने मुझे कहा कि who do I deal with? मैंने कहा you have to deal with me. Oh shit. तो Hmm. तो खैर मैंने उनसे बार्गेन वार्गेन किया, एंड आई सोल्ड इट फॉर 32,500 What? दुबई में 1,000 दिरहम ऊपर 1 साल चलाने के बाद आप घर से गाड़ी नहीं बेच सकते। मैं किसी को पूछता हूँ, कहता है भाई ये इम्पॉसिबल है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। जितनी भी VGC हो, लेडी ड्रिवन हो, जितना भी FSH जितना भी हो, ONO मुझे याद है 38,000 ONO लिखा हुआ था, ऑन ईयर ऑफर। इसका मतलब होता है तो मरूर के पेपर्स भी लगे हुए हैं। हम नेक्स्ट डे गए, वो सब ट्रांसफर की कार्रवाई। तब मैंने And कहा then, कि इसके बाद से हर गाड़ी जो है घर की शकीब बेचेगा। ऑन आवर वे बैक उन्होंने हमें हमारी पजेरो में घर वापस छोड़ा। तो जब हम घर आए तो उन्होंने एक शॉपिंग बैग दिया, उसके अंदर पैसे रखे हुए थे। सो माय फादर, उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया कि मैं लेता हूँ, तो उन्होंने उनको रोका, उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। ओहो, फिल्मी सीन्स। यू सोल्ड मी द कार। और मैंने खड़े होके वो काउंट किया, और नहीं एक सेकंड, रुके 200 300 वापस डाले थैले में, और हम लोग चले गए अपने अपार्टमेंट में ऊपर। तो माय फादर वाज वेरी हैप्पी, सबको कह रहे थे कि देखो इसने गाड़ी बेच दी। और तो उन्होंने बस ये बात बोली, और उन्होंने शाबाश बोला, उन्होंने कहा कि जबरदस्त, और बस ऐसे ही इंसाफ से डील करना है, और सच बोल के हर तरह की बातें बोले। और उन्होंने कहा अब हम बस पाकिस्तान जाएंगे, फिर अब देखते हैं वहाँ कोई अच्छी सी गाड़ी लेते हैं। और मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए, फुल इमोशनल। मेरी गाड़ी चली गई, मैंने किया क्या? बेच दी। और मैं जाके बाथरूम में लॉक हुआ, 2-3 घंटे रोया। फिर मुझे नहीं याद, मैंने 2-3 दिन खाना भी खाया होगा, मतलब बहुत ही अंदर से अभी तक भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो गाड़ी चली गई। मुझे ये भी याद है कि वो कन्वर्ट होके कोई 480,000 रुपीज बन गए थे। अच्छा, मेरी मेंटल मैथ के हिसाब से दुबई में सीडीज मिलती थी, मुझे याद है मैंने फ्लाइट सिम्युलेटर लिया था, वो 180 दिरहम का था, और 235 दिरहम मैंने NFS 3 लिया था उस वक्त। और पाकिस्तान में सीडीज मिलती थी रेनबो सेंटर 70 रुपए या 100 रुपए। पाकिस्तान ना एक बड़ी सस्ती जगह है, तो बड़ा मजा आएगा। तो ये बन गए 4,80,000, 4 लाख लैंड क्रूजर आएगी आते एक नहीं, 2 एंड फास्ट फॉरवर्ड, वी आर बैक इन पाकिस्तान। हम घूम रहे हैं सड़कों पे, क्लासिफाइड्स पढ़ रहे हैं। वो तो भाई कोई लाखों इतने लाखों में तो सिर्फ बलेनो आती थी उस जमाने में। 480 में वाकई 480 में आपको 2 साल पुरानी बलेनो मिलती। या तो खैर फाइनली हमारे यहाँ 98 की GL आई थी, स्काई ब्लू कलर की, और तेज गड्डी, और वो उस जमाने में क्रिस्टल लाइट और बड़ा याद होगी वो गाड़ी पिक करने स्कूल आती थी। तो ये हुआ, हम वापस आ गए। फिर हमने वो करोड़ा खरीद ली, उसकी डील में भी जाहिर है मैं शामिल था। अच्छा, समझ मुझे उस वक्त कुछ नहीं आता था, ट्रस्ट मी, आई गॉट लकी कि वो गाड़ियां सारी अच्छी निकली और उनके एक्सीडेंट्स नहीं हुए थे और उनके डॉक्यूमेंट्स सही थे। 2001 में मेरी अम्मी को मेहरान दिलाई गई थी। मेरी अम्मी पजेरो चलाती थी, मगर अब पजेरो के पैसों में तो करोड़ा नहीं आई। खैर हमने करोड़ा तो ली और अम्मी को मिली मेहरान। तो इट वाज 2 Feb 2001, रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे। मेरे अब्बा कहने लगे कि तुम बस साफ ही करते रहोगे, कभी चलाना बनाना है तुम्हें? तो मैंने कहा कि आप गेट खोलें। तो उन्होंने कहा, उनको लगा ये मजाक हो रहा है कोई। उन्होंने गेट खोला, मैंने धक्का मार के मेहरान को बाहर निकाला कि कहीं हमारी करोला को स्क्रैच ना पड़ जाए गलती से मेरी कोई। धक्का निकाल के बाहर किया और गेट बंद करके मेरे वालिद आके मेरे बराबर में बैठे, मैं ड्राइवर सीट पे। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने कहा देखें ये क्लच दबाया आपने, और ये फर्स्ट गियर, और ये हैंड ब्रेक उतारा, और ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलेटर, और ये देखें ये चल रहा है। क्या कर क्या रहे हो तुम? मैंने कहा ये थोड़ा सा आपने आगे बढ़ाया और ये देखें ये हो गया सेकंड, और गाड़ी चल रही है।
और मैंने पूरे गुलशन ब्लॉक 10A में थे, मैंने उसका चक्कर लगाया, लाके वापस खड़ी ओह की। मैंने कहा आप को भेज दो। मैंने उनको भी चला के दिखा दी, फिर अपने बहन भाइयों को चक्कर लगवाया, फिर मैंने अपनी दादी को फोन करके बताया, मैंने नाना को फोन करके बताया। दिस वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मेरे ख्याल से जिंदगी का मकसद पूरा हो गया था। मैंने उसके बाद से गाड़ी चलाना शुरू कर दी। हम स्कूल में थे, अली एक दफा मेरे घर आया हुआ था और ओके अली को छोड़ने जाना था उसके घर। हम्म तो मुझे याद है कि अली की अम्मी को पता था कि मैं ड्राइव करता हूँ। हम्म तो अली की अम्मी ने कहा कि शकीब ड्राइव ना करे। हाँ उसकी अम्मी के हाँ, मेरे घर वाले हाइपर हाइपर सेंसिटिव होते थे हमेशा से वही वाले पेरेंट्स होते हैं, किसी को हाँ, बता। 2001 तक मैंने आपको बता दिया मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। बिल्कुल 2006, अच्छा इस पूरे दौरान कभी भी हमारी गाड़ी का ऑयल चेंज, सर्विस, ट्यूनिंग, कोई रिपेयर होना हो, मैकेनिक के पास जाके मैं बैठा होता था। हम्म सो जब हम पाकिस्तान आए, वो रमजान भाई घर के करीब ही थे, हम्म और 2000 ऑनवर्ड्स घर में गाड़ी में कोई भी काम हो रहा है, मैं रमजान भाई के वर्कशॉप पे बैठा होता था। हम्म और मुझे काम में दिलचस्पी होना शुरू हो गई, मुझे समझ आना शुरू हो गया कि ये ब्रेक्स ऐसे लग रहे हैं, ये पैड इस शक्ल के होते हैं। अब इसकी मेंटेनेंस और हाउ इट वर्क्स के अंदर मैं घुसना शुरू हो गया। तो रमजान भाई वाज माय उस्ताद, हम्म और उन्होंने मुझे एक एक छोटी छोटी चीज सिखाई कि क्या चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। उनको कोई जरूरत नहीं थी मेरे ऊपर इतना टाइम लगाए, मगर बस मैं उनको चाचा बोलता था, वो मुझे भतीजा बोलते थे, हम्म और नाइस। खुशी खुशी मुझे चीजें बताते थे। इस तरह से फिर बाय 2005 और 6 सबको पता चल गया कि शकीब को गाड़ियों में इंटरेस्ट है, शकीब अभी गाड़ियां देख रहा होता है। तो मेरे खानदान वालों ने अपनी अपनी गाड़ियां हमारे घर छोड़ना शुरू कर देंगे, तुम करा देना और जो बिल बने हमें बता देना। व्हाट आई हैड इन दिस डील वाज के मुझे कोई और गाड़ी चलाने को मिल जाए। तो यस हमारे पास तो करोड़ा थी और मेहरान थी, तो अगर मेरे पास कोई खैबर भी छोड़ के जाता था ना, तो मेरे लिए कुछ नया होता था और मैं बड़ा एंजॉय करता था कि यार खैबर चलाई आ जाए। तो इस तरह से लोगों की, रिश्तेदारों की गाड़ियां मेरे घर आना शुरू हो गई, मैं उनके काम कराने लगा। दोस्तों की गाड़ियां रेफर होना शुरू हो गई, वो अपने ड्राइवर्स के साथ आती थी, काम करा के चली जाती थी। रमजान भाई को बिजनेस मिल रहा था, रमजान भाई मुझसे बड़े खुश थे। हम्म फिर तो इसलिए मेरे रेफरेंस से जो भी गाड़ी आती थी उसका काम प्रायोरिटी पे होता था। तो एसकेएमएस आया फिर 2007 में। वाओ, 7 लॉन्ग टाइम। हाँ 7 में अनऑफिशियली, कि हम्म रमजान भाई से मेरी ये बात हुई थी कि आपको मैं बिजनेस ला के दूंगा एंड आई वांट कमीशन ऑन द टोटल बिल। हम्म तो वो हमने कोई सेट कर लिया था 5% 7% टाइप। हम्म। इसी तरह से फिर वो एसी वाला बराबर में बैठा हुआ था, उससे मैंने, अब मुझे 5-7% एक बेंचमार्क बन गया था। एसी वाले से भी मैंने 10% पे तय किया। फिर पेंटर से मैंने और 15% की कोशिश की, वो 15% पे मान गया। पार्ट्स नाइस। वाले को और 20% पे तय कर लिया। इस तरह से सब 100% सॉर्टेड। अब 20% तक ये सब आगे पीछे होना शुरू हो गया। सही हाँ। मेरे पास काम आना शुरू हो गया, किसी की गाड़ी टचअप के लिए आ रही है, किसी की गाड़ी पेंट के लिए आ रही है। अब मैं बैठा हूँ आराम से अपने कॉलेज में, मेरे रेफरेंस से गाड़ी आ रही है, हम्म तो आई एम अर्निंग मनी ऑन इट। तो या ये एक पैसिव इनकम स्ट्रीम या शुरू हो गया। 2008 में इसको ये नाम मिला, इसके मोटर सिंडिकेट। अब सीबीएम का दौर चल रहा था, हम्म और अक्सर ऐसा होता था मेरे कोर्सेज सुबह फर्स्ट क्लास और फोर्थ क्लास होती थी, सेकंड और थर्ड फ्री। तो मैं सीबीएम से निकलता था, रिक्शा लेता था, लोगों के ऑफिस जाता था, गाड़ी पिक करता था, उस पर काम कराता था, या किसी रेलेवेंट वर्कशॉप पे छोड़ता था, फिर आके क्लास अटेंड या करता था, फिर वापस जाता था, उनकी अपनी गाड़ी लेके ड्रॉप करता था, और उस पे जो भी मेरा पैसे बनते थे वो बनते। तो आई यूज टू अर्न अराउंड 100-150 रुपीज पर कार। और ओके। दिस वाज अगेन मोर ऑफ अ वेलफेयर थिंग, हम्म क्योंकि अब मुझे कोरोलाज और सिविक्स और मार्क टू चलाने को मिल रही थी, और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार ये काम पकड़ना है, प्रॉफिट की खैर है। अब ये 2008 में इसको नाम मिल गया, 2008 अक्टूबर, एसकेएमएस, व्हिच इज एसके मोटर सिंडिकेट। सिंडिकेट मींस कंसोर्शियम ऑफ स्किल्ड पीपल। हम्म और ये हमारे केस में बिल्कुल छूट था। मेरे पास investment के लिए कोई पैसे नहीं थे। इन्वेस्टमेंट की थी, मेरे एक रिलेटिव हैं, सो ही इज माय फादर्स चचा, हम्म उनका नाम है महमूद उज़्ज़मा। उन्होंने मुझे ईदी दी, ईद उल फितर थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो गाड़ियों का काम कर रहे हो, तुम उसमें इसको यूटिलाइज करो और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो। एंड ही गेव मी दिस आइडिया कि तुम इसके बिजनेस कार्ड छपाओ। और मैं किसी को जानता नहीं था जो बिजनेस कार्ड छापे, तो उन्होंने मुझे उस बंदे से भी कनेक्ट किया जो बिजनेस कार्ड छापता था। अच्छा, आई वाज गुड विद ग्राफिक डिजाइनिंग, तो मैंने हम्म खुद एक कार्ड बना के, और मैंने उन साहब को ऑर्डर प्लेस किया। 800 रुपये में उन्होंने बिजनेस कार्ड छापे,
200 रुपए के उन्होंने स्टिकर्स दिए मुझे जो विंड स्क्रीन पे लगाते हैं, और बस बिजनेस मेरा शुरू हो गया। दिस वाज अक्टूबर 2008। थोड़े दिन बाद बारिशें शुरू हुई, नवंबर दिसंबर, और मुझे याद है कि जो कि मैं आज तक चल रही हैं वो बारिशें। हाँ और मैं बैतुल मुकर्रम पे जो गाड़ियां डूबती थी, मैं वहाँ खड़ा हुआ, और जो गाड़ियां डूब रही थी मैं उनको रमजान भाई की हेल्प से स्टार्ट करवा के और उनको अपना बिजनेस कार्ड दे दिया करता था कि फॉर ट्यून अप या एनी अदर थिंग रिलेटेड टू कार्स, Wow. you can call me, I can pick your car from the doorstep हम्म and get the work done and deliver it back. So this was a new thing, a new way of getting customers, और एक पढ़ा लिखा आदमी जो ये इस काम में घुस रहा है, जो कि एक बड़ी अनरेगुलेटेड सी मार्केट है। So it Yeah. clicked, हम्म और लोग मुझे कॉल करते थे, मतलब 90% ऑफ द टाइम पीपल यूज्ड टू कॉल मी बैक। फिर मैंने एक और चीज शुरू की, किसी बाजार गए, आपने देखा एक गाड़ी खड़ी है, इसका बम्पर खराब है, मैं कार्ड के पीछे एस्टिमेट लिख दिया करता था कि इतने पैसों में आपका बम्पर सही हो सकता है। हम्म कार्ड लगाया, Nice. एंड पीपल यूज्ड टू कॉल मी कि वो आपने कार्ड लगाया था, कहाँ है आपका वर्कशॉप, मैं उनको बता लिया करता था। रमजान भाई के पास काम हुआ, मैंने कमीशन से अर्निंग कर ली। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड वर्किंग। अब काम ज्यादा हुआ, एक और मेरा दोस्त था सीबीएम का, उसको मैंने ऑन बोर्ड किया, और हम दोनों, कभी वो कोई गाड़ी पिक करने जा रहा है, कभी मैं कोई गाड़ी पिक करने जा रहा हूँ, बेस्ड ऑन किस तरह किसका स्केड्यूल चल रहा है सीबीएम में। वो भी बड़ा कार लवर था, और हमारी कस्टमर बेस बढ़ना शुरू हो गई। मेरी एक्सेल अच्छी थी, मैं इनवॉइस बड़ी प्रॉपर बनाता था, मैं ईमेल कर दिया करता था इनवॉइस उसके थ्रू। अच्छा, हम एसएमएस पे अपडेट्स दिया कर रहे होते थे कि आपकी गाड़ी अब पिक हो गई है, आपकी Nice. गाड़ी पे अब हमने डिसमेंटल कर दिया है, अब उसमें से ये पार्ट ऐसा निकला है, इसके 3 तरह के पार्ट क्वालिटीज हैं, ए बी सी, इनकी ये प्राइसेस हैं, इनकी ये इतनी इतनी वारंटी है, Hmm. आप क्या पिक करते हैं, रिस्पॉन्ड कर दिया करते थे। ये वो चीजें जो एक रेगुलर मैकेनिक नहीं करता, क्योंकि Yeah. ना तो वो टेक सैवी होता था उस जमाने में कि एसएमएस कर सके, ना वो फोन पे आपकी बात समझते हैं, ना आप अपनी बात उनको समझा पाते हैं। आप जाके उनसे कहते हैं कि मुझे पीछे से आवाज आ रही है, हाँ वो समझता है कि आपको या तो कोई बहुत बड़ी आवाज आ रही है, पूरा सस्पेंशन चेंज कर दिया, और पता चला वो आपका टिश्यू का प्लास्टिक का कवर था वो हिल रहा था, और आपकी गाड़ी का सस्पेंशन चेंज, और वाइस वर्सा। हाँ तो हम क्योंकि उस लेवल पे सुन सकते थे, समझ सकते थे अपने कस्टमर की बात, सो वी यूज्ड टू ब्रिज दैट गैप। हम सुन के Hmm. आते थे कस्टमर की बात, और मैकेनिक की जुबान में मैकेनिक को समझाते थे, हम्म एंड वी यूज्ड टू ऑफर अ 7 day वर्कमैनशिप वारंटी हम्म ऑन टॉप ऑफ व्हाटएवर द वर्क इज डन बाय रमजान भाई और राइट Hmm. other रमजान भाईज ऑफ दैट सॉर्ट। सही तो इस तरह से होते वी हैड 18 वेंडर्स ऑन बोर्ड इन मुख्तलिफ एरियाज ऑफ कराची। अब अगर Wow. मैंने गाड़ी पिक की डीएचए से, तो मैं डीएचए से काम करा के जल्दी पहुंचा दूंगा, वरना मैं गुलशन लेके जाऊं वापस हाँ लाऊं, ऑब्वियसली वो कराची का risky ट्रैफिक कुछ पता नहीं बिल्कुल। Yeah, this is amazing. Yeah. Wow. ब्रो अच्छा, इट्स लाइक अ क्रेजी स्टोरी हाँ खैर My God. Okay. दिस इज हाउ इट स्टार्टेड वर्किंग, और एंड मुझे अभी तक याद है द फर्स्ट मंथ का प्रॉफिट वाज 13,000 रुपीज। दिस वाज 2008, मेरा Yeah. बीबीए अभी चल रहा है, और 13,000 16,000 रुपए टाइप हमने प्रॉफिट बना लिया। या अच्छा, ये आइडिया कि ये काम करना है, मतलब मैं वेलफेयर के तौर पे तो कर ही रहा था ये काम, इससे पहले से भी 3-4 साल पहले से, मगर इसको इस तरह से एक नाम देना है और इसको एक बिजनेस की शक्ल देनी है। दिस हैपेंड एट सीबीएम, एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास थी, और यही सब मुख्तलिफ केस स्टडीज डिस्कस हो रही थी, और उन्होंने एक बात बोली थी कि जो भी आपका पैशन है आप उसको प्रोफेशन, और उन्होंने बस बड़ी एक फिल्मी सी बात बोली, उन्होंने कहा सब आंखें बंद करें एंड थिंक ऑफ योर पैशन। सब आंखें बंद करके बैठे हुए थे, थिंकिंग ऑफ देयर पैशन। सबने आंखें खोली, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, किस किस को पता चला कि उसका पैशन है। 2-3 हाथ उठे, एक मेरा हाथ था, मैंने कहा गाड़ियां मेरा पैशन है। कहने लगे क्या गाड़ियां, थिंक अबाउट इट। वो बाय द एंड ऑफ दैट डे मेरे जहन में आइडिया था कि ये एक चीज है जो गैप है मार्केट में, दिस इज वेयर आई कैन फिट इन, दिस इज वेयर आई डोंट नीड एनी इन्वेस्टमेंट, मेरा कोई गैराज नहीं, कुछ नहीं, वेंडर ऑनबोर्ड करना है, काम उसने अच्छा किया तो व्हाइट लिस्ट है, काम उसने बुरा किया तो ब्लैक लिस्ट है। इनमें आपस में कंपटीशन क्रिएट कर दिया। रमजान भाई को पता था अगर उन्होंने काम गलत किया तो एक और बंदा है गली के कोने पे, उसको काम मिल जाएगा। तो मेरा काम Hmm. हो रहा है, मेरा काम अच्छे रेट से हो रहा है, मेरा कमीशन बढ़ा दिया, तो ये एडवांटेजेस मुझे मिलना शुरू हो गए। इन रिटर्न मैंने उनके बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दी। मैंने इंग्लिश में सर्विस मैनुअल्स होते थे गाड़ियों के, जो जापानीज वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यू कैन रिक्वेस्ट द मैन्युफैक्चरर्स के वी लिव इन पाकिस्तान, ये गाड़ी यहाँ पे सर्विस नहीं होती है एट द डीलरशिप, काइंडली सेंड मी अ पीडीएफ ऑफ द सर्विस मैनुअल। और हम उस मैनुअल को देख देख के मैं रमजान भाई को बताता था कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू में इसका मतलब ये है,
मुझे नहीं पता क्या करना है, आप इस तरह से करें जो इसमें लिखा हुआ है, ताकि हम उसी हिसाब से कर पाए। हाँ अच्छा, रमजान वाज वेरी हैप्पी विद मी कि उनको भी सीखने को मिल रहा है। 3 इयर्स डीलरशिप पे जो गाड़ी जा रही होती थी 6 महीने पुरानी सिविक, वो हमारे पास आना शुरू हो गई क्योंकि वो डीलरशिप से खुश नहीं थे। 2009 में शेल तामीर के नाम से एक एक स्टॉल लगा सीबीएम में। राइट आइडियाज का वो लोग वर्कशॉप कराते थे एंड दे यूज्ड टू टीच यू एंटरप्रेन्योरशिप, बेसिक Yeah. कोर्सेज कि कैसे पीएनएल बनता है, बैलेंस शीट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, जो आपको किताबों में पढ़ने से समझ नहीं आते और आपको किसी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी से मिलना होता है। शेल तामीर ने वो गैप ब्रिज किया हमारे लिए। तो शेल तामीर यूज्ड टू इनवाइट अस टू आईबीए में कुछ वर्कशॉप्स होते थे, वी यूज्ड टू मीट रोल मॉडल्स और कुछ हमें वर्कशीट्स मिलती थी, हम उस पर सीखते थे कैसे ये पीएनएल बन रहा है, अकाउंट्स क्या और शेल तामीर ने हमें कनेक्ट किया स्मेडा से, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान। उन्होंने सब कुछ हमें बहुत अच्छी तरह सिखाया और मुझे दिल किया कि हाँ मैं बिजनेस करूंगा और समझ आना शुरू हो गया कि ये जो बहुत बड़ा टर्म है एंटरप्रेन्योर, ये हम बन गए। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो शेल तामीर एंटरप्रेन्योरियल अवार्ड्स हुए और उन्होंने मुझे कहा कि आप पार्टिसिपेट करें। मैंने उनको बोला कि हर कोई ऐसे ही बोलता है पार्टिसिपेट करने को और कोई प्राइज वाइज कुछ नहीं होता और ये सब पहले से मैच फिक्स हुआ है और मैं नहीं कर रहा। मैं ऐसे ही बोल के आ गया। हमारी सीबीएम में एक टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास तुम्हारा बिजनेस कार्ड था, मैंने उसकी फोटो कॉपी करके और सबमिट कर दिया है शेल वालों को, तुम्हें जाना है, तुम्हें पार्टिसिपेट। मैंने कह दिया, खत्म। और मैं कुछ कह भी नहीं सका उनको, उन्होंने कर दिया था ये काम। वो शेल तामीर के जो एंटरप्रेन्योरियल अवार्ड्स हुए उसमें हम जीते तो नहीं, लेकिन हमें बहुत माइलेज मिला। पीटीवी पे एक मॉर्निंग शो हुआ, मैं उसमें गेस्ट इनवाइट हुआ, पहली दफा मैं लाइव टीवी फेस कर रहा था। फिर अखबार में इतना बड़ा आर्टिकल छप गया, डॉन में डॉन फ्रंट पेज पे हाफ पेज के मोटर सिंडिकेट छपा हुआ है। तो देख के ही आपको समझ में नहीं आता था कि आप हैं कौन, ये जो अखबार में नजर आ रहा है क्या, या वो जो सीबीएम में पढ़ा है। तो इतनी रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई, लोग पूछते थे, सीबीएम में लोग कहते थे क्या कमाल कर दिया वगैरह वगैरह, घर वाले सब बड़े खुश। और एसके मोटर सिंडिकेट जो एक छोटा सा ब्रेन चाइल्ड था, सिर्फ पॉकेट मनी और अच्छी गाड़ियां चलाने के लिए बना था, वो प्रॉफिट बना रहा है और जबरदस्त काम कर रहा है। अच्छा, अब ये हुआ कि सीबीएम खत्म हुआ, 2010 में एमबीए खत्म हुआ एंड माय फादर वाज लाइक कि तुम ये हाथ पैर जो काले करते हो मुझे अच्छे नहीं लगते, यू हैव टू हैव अ जॉब, ये तुम परसू नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अ करियर। अच्छा, हमारे फैमिली में किसी ने बिजनेस किया भी नहीं है, माय फादर हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। एक नौकरी की 1976 में शुरू हुई, 2014 में खत्म हुई, तो वो यही चाहते थे कि हम भी नौकरी करें वरना हम सेटल नहीं होंगे। और दूसरा ये कि मैं मैकेनिकों के पास बैठता हूँ और हाथ पैर काले करके आता हूँ, सैंडल पजामा पहन के घूम रहा है। तो मैंने फिर नौकरी ढूंढी, मेरी पहली नौकरी लगी 10,000 रुपए की, एंड बाय दिस टाइम आई यूज्ड टू मेक 90,000 or 100,000 while at PM. Wow. Motor syndicate. And I was giving direct employment to so many vendors वगैरह, my age and 75 skilled people lying at 25 vendors. तो this was big, मगर क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था तो मैं नौकरी की, उसके 10% ऑफ द प्रॉफिट की, और मैंने नौकरी भी जाना शुरू कर दिया 9 to 5 स्लेवरी टिपिकल। और मेरा जो बॉस था वो फिर 2 महीने बाद मैं रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा क्यों रिजाइन करो, मैंने कहा पैसे बहुत कम है, इतने में तो मेरा फ्यूल लगता है। फिर उन्होंने प्रमोट कर दिया, मेरे पैसे भी बढ़ गए। फिर मैंने ली थी अपनी पहली गाड़ी विच वाज डैटसन ब्लूबर्ड 1983 का मॉडल, और ये मैं संडे बाजार से लेके आया था। इट वाज इन डेड कंडीशन, मतलब घर लाते लाते भी वो हीट अप हो गई, पावर स्टीयरिंग नहीं काम कर रहा था, धुएं उठ रहे थे बोनेट में से, पेंट नहीं था गाड़ी के ऊपर, सीटें फटी हुई थी, छत फटी थी, अंदर घर लाते लाते ही मैंने छिपकली भी देखी थी जमीन पे गिरी थी। डिक्की खोली लाश थी। नहीं, डिक्की के अंदर अंडे थे मेरे ख्याल से किसी परिंदे के घोंसला। और वो गाड़ी घर आई, मैं बहुत खुश, पहली गाड़ी घर आई,
मेरी पहली गाड़ी मैंने अपने जमा पूंजी जोड़ के ये गाड़ी खरीदी। Yeah. 1,75,000 रुपए की ली थी मैंने, और चलता उसमें कुछ नहीं था, बस गाड़ी थी। और मैंने सोचा था थोड़ा थोड़ा जमा करते करते आई बिल्ड इट अप। तो मेरे घर वालों ने कहा ये क्या लिया है तुमने, और सब बड़े अजीब से एक्सप्रेशंस लेके खड़े हुए थे कि उनको दिखाना ये था कि बड़ी खुशी की बात है तुमने गाड़ी ली, और उनको अफसोस भी था कि ये तुमने गाड़ी ली है। तो खैर वो नेक्स्ट डे से मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मैंने ली थी 29 मार्च को। अप्रैल में मैंने पैसे जमा किए, थोड़ा थोड़ा सिंडिकेट को भी साथ साथ चलाता रहा कि पैसे आ जाएं। और मई में मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ली ऑफिस से, और मैंने उस गाड़ी को रिस्टोर किया। सुबह से जाके बैठे हैं वर्कशॉप में, Nice. कर पेंट महंगा हो रहा है, तो मैं उसको बोलता था भाई मैं लेबर बनने को तैयार हूँ, मैं करूंगा किसाइयाँ, मैं करूंगा जो तुम बोलो ये करूंगा, पैसे कम कर दो। 19,000 रुपए का मैंने पेंट कराया था। कहाँ होता है वो, उस जमाने में भी 30,000 से कम पेंट नहीं होता था। Yeah. फिर उसका उसका इंजन वीक था, रमजान भाई के पास गए, दोनों खोल के बैठे हुए थे। उसका भी मैंने रिपेयर मैनुअल मंगवाया, उसके पार्ट्स मैंने सोर्स किए सदर से, कुछ पार्ट्स आए थाईलैंड अच्छा, से। तो और ओरिजिनल इंजन ना? ओरिजिनल इंजन 1.6 डुअल Nice. कार्बोरेटर, फ्यूल इकोनॉमी 4 किलोमीटर पर लीटर। बट अच्छा, मुझे मुझे हर कोई कह रहा था भाई तुम कोई खैबर लो, तुम कोई Nissan लो, पहली गाड़ी ले रहे हो। मैंने कहा फिर मेरा फायदा क्या, मुझे किसी गाड़ी को जिंदगी देनी है, और माई कार हैज टू बी समथिंग डिफरेंट। जबरदस्त चमकती थी, पावर विंडोज थे, रिट्रैक्टेबल मिरर्स, अलॉय रिम निसान के ओरिजिनल उस जमाने के। फिर उसका जो आर्मरेस्ट था वो था ही नहीं, तो वो मेरी अम्मी Yeah. ने कुशन से फैब्रिकेट किया था और वो बीच में लगाया। फिर उसमें एक Nice. हिडन पॉकेट बनाई थी कि तुम अपना फोन इसमें छुपा दिया करो, क्योंकि मेरा एक फोन छिन गया। Oh, Karachi Karachi, issues. Karachi story. हाँ, अच्छा. so this is how Datsun Bluebird came into being। और मेरी पहली नौकरी और दूसरी नौकरी खत्म हुई, तो मैं मेरी स्टैंडर्ड चार्टर्ड में नौकरी हुई, मैं इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम में हायर हो गया। और मेरे अब्बा बड़े खुश थे कि अब तो जिंदगी सेटल्ड है, बैंकर बन। 6 महीने आफ्टर यू गेट एम्प्लॉयड एट अ बैंक, यू गेट दिस 2% वाला स्टाफ लोन। Right. 2% के स्टाफ लोन से मैंने ली, जो उस जमाने में करोला थी। एंड माई ब्लू बर्ड हैड टू गो देन। तो Oh. ब्लू बर्ड को देखने के लिए लोग आते थे। मुझे याद है एक साहब आए थे जिन्होंने बहुत अच्छे पैसे ऑफर किए थे। 275 उन्होंने मुझे ऑफर किया था। और मैंने उनसे वैसे ही पूछा आप करेंगे क्या इस गाड़ी का, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं सोराब गोट से हैदराबाद तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करूंगा। मैंने कहा ये टैक्सी का काम मेरी गाड़ी से नहीं होना चाहिए, तो मैंने उन्हें गाड़ी नहीं बेची। मैंने गाड़ी सस्ती बेची, आई सोल्ड इट फॉर 250, बट आई Yeah. सोल्ड टू 3 बॉयज ऑफ हमारी एज ग्रुप के। उनके वालिद आर्मी से रिटायर हुए थे, और वो अपने वालिद को रिटायरमेंट का गिफ्ट दे रहे थे वो गाड़ी। तो मैं बड़ा खुश था कि अच्छे घर में जा रही है और सही है इसके साथ। अच्छा, अब एक दिन शेल वाले मुझे IBA, जैबिस्ट, CBM भेजते थे गेस्ट लेक्चरर के तौर पे, क्योंकि मैं अब रोल मॉडल एंटरप्रेन्योर बन गया था जिसने 800 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, और ही इज मेकिंग गुड मनी एंड ही हैज अ वेरी गुड आइडिया। तो एक दफा हम जैबिस्ट में लेक्चर दे रहा था मैं, और वहां आए हुए थे कुछ लोग अमेरिकन कॉन्सुलेट से, जो कि मुझे पता नहीं था। अगले दिन मैं ऑफिस में था, SCB, और लंच कर रहा था, और मुझे ये कॉल आई अमेरिकन कॉन्सुलेट से कि यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर दिस प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम। You cannot apply for this program. You can only be nominated by an official of the US consulate. So you have been nominated because of your idea, and we would like you to represent Pakistan's youth entrepreneurship in the US. तो मैंने एक्सेप्ट किया वो प्रोग्राम, और मैं 1 महीने के लिए US गया, और उन्होंने मुझे 6 मुख्तलिफ स्टेट्स घुमाया, मुझे वहाँ के रोल मॉडल से मिलवाया, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स इन US। मैं उन लोगों से मिला, और वहाँ के गैराजेस, वहाँ के कार लवर्स, सबसे मिला। Yeah. लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ एक जगह तो उन्होंने पूरा एक दिस वाज कोलंबिया कॉलेज नाम था या क्या नाम था, ऐसे कोई नाम था उसका। और वहाँ बच्चों को पहले से बताया हुआ था, सो दीज वर किड्स ऑफ आई थिंक ग्रेड 11-12 टाइप। Okay. और उनको बताया हुआ था कि हम सक्सेस स्टोरी के लिए रोल मॉडल्स बुला रहे हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो मैं अपने टैबलेट पे पिक्चर्स ले गया हुआ था पाकिस्तान की, और मैं उनको दिखा रहा था कि दिस इज पाकिस्तान। और मैं उनसे पूछा था कि व्हाट्स योर व्यू अबाउट पाकिस्तान। दे यूज्ड टू टेल मी कि लोग फटे हुए कपड़े पहने हुए होंगे, टायर जल रहे होंगे, ब्लास्ट हो रहे होंगे, और रेड स्काई होगा, ये उनके Yeah. कॉन्सेप्ट्स थे। तो मैंने उनको अपने टैबलेट पे अच्छा ये स्टोरी और ये पिक्चर
कवर हुई थी वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में। अली मुझे याद दिलाना, मैं वो न्यूज़पेपर की कॉपी शेयर करूंगा। तो उस लोकल न्यूज़पेपर में उन्होंने दिखाया हुआ है कि मैं ऐसे टैबलेट लेके बैठा हूँ और बच्चों को दिखा रहा हूँ कि दिस इज पाकिस्तान। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। सिंडिकेट को तो कर ही रहा था, साथ में पाकिस्तान क्या है, लोग वहाँ के क्या Yeah. हैं, हम पढ़े लिखे, बातचीत कैसे करते हैं। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, फिर हम वहां से निकले, उनके लंच एरिया गए, कैफेटेरिया में बैठे हुए थे, तो मेरे पास 4 लड़के आए और उन्होंने कहा कि वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू। हम्म, बाहर निकला, लाइन से कोई 6-7 गाड़ियां खड़ी हुई थी, हम्म, उन गाड़ियों के ऊपर चाबियां पड़ी हुई थी और बोर्ड मार्कर्स पड़े हुए थे, एंड दे वांटेड मी टू साइन देयर कार्स विद अ What? बोर्ड मार्कर, एंड दे Wow. वांटेड मी टू ड्राइव दोस कार्स ऑन द ट्रैक ऑफ देयर कॉलेज। वहाँ पार्किंग लॉट था खाली पड़ा हुआ, उसमें सबसे पहले खड़ी हुई थी ऑडी टीटी। मैंने जिंदगी में Oh. कभी नहीं चलाई, मैंने वो ऑडी टीटी चलाई। और वो बच्चा मुझे बता रहा था कि कैसे उसके अब्बा ने इसको टर्बोचार्ज कराया हुआ है और इसमें कार्बन फाइबर के ट्रिम्स लगे हुए हैं। हाँ आई हाँ हैव दोस पिक्चर्स। वो गाड़ी मैंने चलाई। एक मर्सिडीज E300 कैब्रियोलेट कन्वर्टेबल वगैरह वगैरह 2 डोर खड़ी हुई थी सिल्वर कलर की, वो मैंने चलाई। एक वहाँ डॉज चैलेंजर खड़ी हुई थी। ये सारी वो गाड़ियां हैं जो मैंने नहीं चलाई पाकिस्तान में रहते हुए। वो मुझे पता नहीं क्या समझ रहे थे और उनको खुशी मिल रही थी कि मैं उनकी ये गाड़ियां चला रहा हूँ। वो अपने पेरेंट्स से मांग के लेके आए हुए थे। Yeah. तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम, वेरी वेल सॉर्टेड। और इस तरह से ये यूएस का प्रोग्राम खत्म हुआ। हम वापस आ गए और अब मैं यूएस एलुमनाई एक्सचेंज प्रोग्राम का एक मेंबर बन गया हूँ। अच्छा 2014 में हुआ, 2014 नवंबर में हुआ शेल लाइव वायर इंटरनेशनल टॉप टॉप 100 टॉप 10 इनोवेटर्स प्रोग्राम। तो ये इसके अंदर there were around 21,000 entries from all across the globe, and they had to pick top 10 innovative ideas in entrepreneurship Hmm. from the world. तो ये टॉप 10 तक आते आते इन्होंने कुछ इंटरव्यूज भी किए ऑनलाइन, फिर आके भी मिले हमसे। यहाँ भी इन्होंने एक स्टॉल बनाया था। देवर टू Hmm. आइडियाज फ्रॉम पाकिस्तान जो टॉप 10 के लिए नॉमिनेट हुए। हम्म उसमें मैं थर्ड प्राइज जीता था, एंड आई गॉट अ ग्रांट प्राइज ऑफ $5,000। मतलब काफी Wow. क्रेजी सीन है 21,000 में से Yeah. like coming That in is हाँ, third insane. 2000 Yeah. फिर Yeah. Wow. थर्ड बना वाज क्रेजी। $5,000 मिले थे और उससे फिर मैंने बिजनेस को और एक्सपैंड किया, एनहांस किया। दिस वाज 2014। हम्म बस उसके बाद से फिर सिंडिकेट ने मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार की। हम्म हम मॉडिफिकेशन में गए, हमने स्पोर्ट्स कार्स स्वैप करना शुरू कर दी। फिर हमने एक स्टेप बैक लिया क्योंकि स्पोर्ट्स कार्स 2 दरिया का ट्रैक इन्होंने बंद कर दिया, पुलिस वालों ने लड़कों को तंग करना शुरू कर दिया, स्पोर्ट्स कार्स की वैल्यूज पुरानी नीचे आना शुरू हो गई। वी मूव टूवर्ड्स 4x4s की रेस्टोरेशन, पुरानी 4x4s के बॉडी स्वैप्स, ऑफ रोडिंग के लिए कन्वर्ट करना, आयरन मैन सस्पेंशन डालना, ARB बम्पर्स Yeah. डालना, सारे कामों में आ गए। मैंने बीच में एक वर्कशॉप अपना भी खोला, अब पूरा अपना सेटअप। बट आई रियलाइज कि मुझे अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ के ये काम कर सकता हूँ मैं, वरना नहीं कर सकता। मैं अभी Yeah. तक भी जॉब कर रहा हूँ पैरेलल, मैं अपना करियर नहीं छोड़ा और साथ में मैं करता हूँ ये गाड़ियों वाला काम। काफी मतलब क्या कह सकते हैं इस ऑब्वियसली बात को विद टाइम द बेसिक आइडिया इवॉल्व्ड। हाँ वो जो हम घरों से गाड़ियां पिक करके काम करा के ड्रॉप करे थे, इट चेंज्ड फ्रॉम द इनिशियल आइडिया। हमने पिक करने को ज़्यादा प्रोमोट करना छोड़ दिया। हमें ज़्यादा दिल यही करता था कि लोग आएं, मिलें और छोड़ के जाएं अपनी गाड़ी। हम लोगों से प्री मीट ज़रूर कर लिया करते थे। फॉर एग्जांपल एक साहब हैं जो चाहते हैं कि हमसे गाड़ी मेंटेन कराएं, बट ही इज़ रिलक्टेंट कि मैं इनसे काम क्यों कराऊं, मैं तो टोयोटा के पास जाता हूँ। सो वी यूज्ड टू गो एंड प्रेजेंट कि हम क्या करेंगे आपकी गाड़ी पे, एंड बाय लुकिंग एट दोज सर्विस मैनुअल्स या बाय मीटिंग अस, the way we talk, the way we take guarantee of whatever we do, or our passion for cars, आधे से ज्यादा कस्टमर तो वहीं सेटिस्फाई हो जाया करता था और गाड़ी देने पे सोचता। तो हमने वो प्री मीट्स करना शुरू कर दिए और नेक्स्ट डे गाड़ी ड्राइवर बिठवा के और हमारे पास छोड़ दिया करता था। So this is how What it is started. SKMS up to फिर nowadays? फिर अब main are you still dealing with आम आदमी या main corporate level काम हो गया या high level नहीं business ले रहे हो? we are meeting the आम आदमी. We are really keen into areas जैसे लोग आते हैं कि हमारा बजट कम है but we want a nice car. So there are people जो 3 लाख का बजट, 2.5 लाख का बजट लेके आते हैं, and you have to give them a car.
So we try and get cars जो कि बिल्कुल ख़त्म हालत में हो. We rebuild them ताकि वो 2.5 लाख 3 लाख जो भी वो चीज़ चलाएं. It is full of new parts or हम्म sort of हम्म parts ताकि वो आराम से 1.5 2 साल 3 साल हैसल फ्री गाड़ी खूबसूरत चमकती हुई साफ सुथरी चला सकें. हम्म So most of my clients are women and students who have come from other cities. सही वो जो हमारा 25 का नेटवर्क था वो हमने थोड़ा सा श्रिंक किया एंड वी आर बैक टू 18 एट द मोमेंट. इसमें स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइडर्स हैं, इसमें एक्सेसरी प्रोवाइडर्स हैं, हम्म इसमें मैकेनिकल वर्क्स भी अलग अलग क्वालिटीज के अलग अलग सेगमेंट्स के, जैसे सस्पेंशन वाला अलग है, इलेक्ट्रिशियन अलग है, फिर हाइब्रिड्स को देखने वाला अलग है. तकरीबन हर तरह का काम मैनेज हो जाता है. और बिफोर वी मूव ऑन टू क्वेश्चंस जो कि हमारे लिसनर्स ने और इंटरेक्ट करने वालों ने भेजे थे, हाउ शुड पीपल गेट इन टच विद एसकेएमएस? बेस्ट तरीका क्या है? फेसबुक पे इनबॉक्स में मैसेज कर दें. फेसबुक पे We'll इनबॉक्स get में? back to you. या ओके Yeah. ठीक है. This is the fastest way to reach out to us. तो उसकी बात ये है कि पहला सवाल भेजा है सफ़ी साहब ने, इम्पोर्टेड कार्स के बारे में पूछ रहे थे, और 2 सवाल हैं इम्पोर्टेड कार्स के बारे में एक्चुअली. ये तो पूछ रहे थे कि प्रोसेस क्या है, और उनका दूसरा सवाल ये था, अच्छा इन्होंने सुना था कि गेटिंग इम्पोर्टेड कार्स इज टफर नाउ, एंड आई थिंक समवन एल्स वाज आस्किंग व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू इम्पोर्ट कार्स. आई थिंक ताकि ड्यूटीज़ वगैरह सबसे ज़्यादा स्ट्रीमलाइन तरीके से हो जाए. दूसरा सवाल इनका ये था कि परसेप्शन ऑन किया एंड Hyundai इन पाकिस्तान, विल दे बी एबल टू पेनिट्रेट ईजिली. आई थिंक ये वाली बात तो किया वाली बात आई थिंक पहले कर लेते हैं, क्योंकि दिस माइट बी द ऑब्सोलीट बिट. So Kia और Hyundai लॉन्च हुए अब तो टाइम हो गया थोड़ा, और बोथ आर डूइंग प्रीटी वेल. या तो असल में इधर Sorry. मैं टूसॉन के बारे में आपको बताऊं, विच इज बाय Hyundai. हर कोई वेट कर रहा था, स्पोर्टेज का डायरेक्ट कंपैरेटर है. राइट लॉन्च हुई डे 1. अच्छा, जो इनसाइडर न्यूज़, उनका टारगेट था कि हम पहले महीने 300 यूनिट्स बेचेंगे, और उन्होंने पहले दिन 2300 गाड़ियों की बुकिंग क्लोज किया. ये लॉन्च होने से पहले इनको पता था ये पेनिट्रेट कर जाएंगे. अच्छा, एक बात ये भी है कि पिछले 10-15 सालों में पाकिस्तानी लोगों का टूरिज्म की तरफ भी रुझान ज्यादा बढ़ा है. मतलब आप दुबई जा रहे हैं, आप थाईलैंड जा रहे हैं, आप Right, टर्की right, जा right. रहे हैं, उधर ये सब चल रहे हैं, किया और होंडा और, एंड यू रियलाइज किया ये अच्छी भली गाड़ियां हैं. यप जो हम समझते हैं कि बस टोयोटा है और होंडा और सुजुकी और इसके अलावा कोई नहीं है, ऐसा हाँ. नहीं है. लास्ट वीक की खबर है, सुजुकी स्विफ्ट डिसकंटिन्यू हो रही है. इसी तरह टोयोटास में ये एक्सएलआईज और जीएलआईज डिसकंटिन्यू कर रहे हैं. 1.3 वेरिएंट की जगह यारिस लॉन्च कर दी है इन्होंने, यारिस सेडान, और उसमें आएंगे 1.3 और 1.5 वेरिएंट्स. और कोरोला को इन्होंने अलग कर दिया, जिस तरह से होंडा ने किया वैसे टी अलग है और सिविक तो अलग है. Corolla will only be 1.8 1.6 एंड 1.8. 1.6 और 1.8. ओके ओके. और ये क्यों कर रहे हैं? बेसिकली स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स कंपटीशन की वजह से. हाँ, अच्छा क्योंकि अब वो यारिस रिलेटिवली लोअर प्राइस टैग पे निकाल के ज्यादा फीचर्स के साथ ऑफर कर सकते हैं. अच्छा जी, एक और साहब ने सवाल पूछा था कि इज इट वर्थ सेलिंग माय 130-ish किलोमीटर सिटी O6 सिटी फॉर अ मैनुअल रिबॉर्न? आई नीड समथिंग मोर एक्साइटिंग टू डेली. ऑल्टरनेटिव्स चाहिए थे उनको बिटवीन इन द 13 लाख रेंज, प्रोज कॉन्स वगैरह. हाँ बिल्कुल, गाड़ी तो मिल जाएगी, बट ऑब्वियसली एक 130,000 चली हुई गाड़ी अगर आप खुद मेंटेन कर रहे हैं वर्सेस आप यूज मार्केट से जाके एक गाड़ी ऑफ सिमिलर एज लें, तो आई वुड स्टिल से कि आप अपनी पुरानी गाड़ी रखें, अनलेस यू नो द कार वेरी वेल, आप उसकी हिस्ट्री जानते हो, आप ही किसी जानने वाले के पास हो, तो आप ये जंप लें. वरना सेफर आई टू थिंक, स्टे विद इट. हाँ हाँ, क्योंकि स्पेशली अ यूज्ड एंड एन ओल्ड होंडा खर्चे बहुत निकालती है. तो फ्यूल की सिचुएशन क्या चल रही है पाकिस्तान में, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू हाउ वी सी ऑल दीज महंगी महंगी पैनामेरा टाइप गाड़ियाँ, ये हमारे फ्यूल पे कैसे चल रही हैं? और इसके अलावा यूरो 5 की अभी जो पाकिस्तान में फ्यूल चेंज आया है, व्हाट्स अप विद दैट? अच्छा, सो आप देख रहे हैं पिछले चंद सालों से these Audis and Mercs and Porsches have come to Pakistan, और अच्छी भली चल रही हैं. कैसे चल रही हैं? हाई ऑक्टेन डालते थे, उस पर चल रही हैं. हाई ऑक्टेन में वेरिएशन जरूर आता है. कुछ जगह आपको प्रॉब्ली 85 रॉन का मिल रहा हो, कुछ जगह 92 का मिल रहा हो, कुछ जगह 87 का मिल रहा हो. तो लोगों ने जो ये गाड़ियां ओन करते हैं, दे आर यूजुअली रिजाइडिंग टुवर्ड्स पॉश एरियाज ऑफ
देयर मेट्रोपॉलिटन सिटी, और वहाँ के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो अच्छे होते हैं आमतौर पे, तो वो ऑक्टेन भी उसी हिसाब से अच्छा किस्म का बेच देते हैं विद लेस मिलावट और जो भी कुछ है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन इज के एडिटिव्स मिलते हैं मार्केट में। लिक्विड मॉली एक ब्रांड है, उसका ऑक्टेन बूस्टर मिल जाता है, और भी मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनके ऑक्टेन बूस्टर्स मिल रहे हैं, लोग आमतौर पे वो भी डाल रहे हैं एंड दे वर्क वेल। अच्छा, विद यूरो 5 कमिंग इनटू द मार्केट, यूरो 5 को आए हुए शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए। यूरो 5 वाकई में अभी तो फिलहाल 99 और 100 रॉन का फ्यूल बेच रहा है। अच्छा, हम जितने भी ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट्स हैं, हमने कुछ लोगों के पास रॉन मेजर करने वाला जो डिवाइस है वो है, तो ये लोग हाफ लीटर बॉटल्स में पेट्रोल सैंपल्स लेके और खुद चेक कर लेते हैं कि भाई कितना रॉन है, ताकि हम गाड़ियों को रिफ्यूल करें या नहीं करें। एंड वी वर सरप्राइज टू सी 99 और 100 की रीडिंग्स उस पर। एंड गाड़ियाँ भी बड़ा एक विजिबल डिफरेंस आपको, नोटिसेबल डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है उन गाड़ियों को चलाने में राइट आफ्टर यू रिफ्यूल इट विद यूरो 5। डीजल का हाउएवर मसला चल रहा है, अभी भी डीजल की क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं है, और ये जो पुरानी जर्मन हैं हमारे पास Q7 चल रही हैं डीजल इंजन वाली, हमारे पास कुछ मर्सिडीज के वेरिएंट्स भी हैं पोस्ट 2000 एंड 2010s की बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी डीजल्स की बात नहीं कर रहा। इन गाड़ियों में आते हैं मसले, और वक्तन फवक्तन इनके जो डीजल इंजेक्टर्स हैं उनकी सर्विस या उनकी रिप्लेसमेंट चल रही होती है। सही। ये मसला कुछ जापानीज गाड़ियों को भी है, स्पेशली द मित्सुबिशी पजेरो व्हिच हैड GDI। GDI तो खैर पेट्रोल इंजन था, मगर उसमें भी ये मसला आ रहा था क्योंकि वो पेट्रोल हमारे यहाँ का जो था वो GDI सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, और खासी जल्दी जल्दी उसके इंजेक्टर्स चेंज होते हैं। और तो इसी हमारे था फ्यूल का मसला विच इज प्रीटी गुड नाउ, डीजल में पेट्रोल बस मसला वाइज, है। हाँ ओके। और इन्हीं का एक और सवाल ये भी था व्हिच मेक्स सेंस के शी वांट्स लाइक सम आइडियाज ऑन फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां, के पुरानी गाड़ियों में कोई फ्यूल एफिशिएंसी की इंप्रूवमेंट आ सकती है, एमिशन रिडक्शन की इंप्रूवमेंट, क्योंकि मोस्ट पीपल कैन नॉट अफोर्ड हाइब्रिड्स वगैरह, उनकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी लोगों के लिए प्रोहिबिटिव होती है। तो कोई ऐसे आई डोंट नो अपग्रेड्स या ऐसे कुछ, आई डोंट नो व्हाट यू वुड चेंज इन अ कार जिससे फ्यूल एफिशिएंसी ड्रास्टिकली बढ़ जाए, एमिशंस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएं। अच्छा, एमिशंस और फ्यूल इकोनॉमी दो अलग अलग बातें हैं। पाकिस्तानी आमतौर पे एमिशंस की तो फिक्र कर ही नहीं रहा। या आपकी गाड़ी बनाती रहे कार्बन मोनोऑक्साइड और सूट, आपको नहीं फर्क पड़ता। गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी दे रही है अच्छी, आप चलाते रहेंगे। अच्छा, कार्बन का नंबर नीचे लाने का या सूट को कम करने का तरीका ये है कि आपकी गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं, और ये आपने जो सुना है यूरो 2, यूरो 1, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6 तक स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे ISO के स्टैंडर्ड्स होते हैं उसी तरह यूरो स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर एमिशन स्टैंडर्ड्स। तो एमिशन इज अ डिफरेंट थिंग, फ्यूल इकोनॉमी इज अ डिफरेंट थिंग। जिन गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगे हुए उनकी एमिशन स्टैंडर्ड्स बेटर हैं, वरना जो पुरानी गाड़ियां हैं प्री EFI वाला दौर, जो कार्बोरेटर वाले इंजन से, उनमें ज़्यादातर में 99% में कैटालिटिक कन्वर्टर्स नहीं है, और वो गाड़ियां एमिशन ज़्यादा ही निकालती हैं। अब आते हैं फ्यूल इकोनॉमी पे। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, अब तीन हो गई हैं, कार्बोरेटर इंजन, EFI इंजन, और अब हम चले गए हाइब्रिड्स की तरफ। हाँ। तो ये तीन कैटेगरीज है। कार्बोरेटर गाड़ियां ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती हैं, उसकी वजह यह है कि उसके कार्बोरेटर में फ्यूल आप समझ लें कि बल्क क्वांटिटी में आता है, एयर के साथ मिक्स होता है, आपके स्पार्क प्लग्स के पास जाता है, कंबशन होता है, बर्न होता है, और आपकी गाड़ी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके चलना शुरू कर देती है। EFI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। दिस इंजेक्शन का मतलब ये है उसमें इंजेक्टर्स लगे हुए दैट थ्रो इन द फ्यूल बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में, जितना रिक्वायरमेंट हो, and these EFI injectors are connected to an ECU, which is the electronic control unit, जो आपकी गाड़ी को based on how you press your accelerator, based on आपके स्पार्क प्लग्स की रेटिंग इस वक्त क्या चल रही है, बाहर टेम्परेचर क्या है, आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम किस स्टैंडर्ड पे इस वक्त खड़ा हुआ है, आपका एयर फिल्टर कितना चोक और कितना सही है, की बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि फ्यूल कितना देना है EFI नोजल के थ्रू। और
क्योंकि वो मिनिमम क्वांटिटी होती है तो वो एफिशिएंसी के साथ उस फ्यूल को यूज करके हम्म और आपका फ्यूल जला के और आपकी गाड़ी चलाता है। तो ईएफआई गाड़ियां यूजुअली बेटर फ्यूल इकोनॉमी देती हैं कार्बोरेटर गाड़ियों के मुकाबले में। एंड which is देन कम्स basically a difference in the technology being used. हाँ, इट्स द डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी। अगर किसी के पास कोई 10-15 साल पुरानी ईएफआई गाड़ी है विच इज नॉट गिविंग अ गुड फ्यूल इकोनॉमी, तो वो अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवाए। इसमें प्लग्स आते हैं, इसमें एयर फिल्टर, ये तो बेसिक्स हैं। हम्म फिर आप जाते हैं टुवर्ड्स द थ्रॉटल बॉडी सही है तो आप जाते हैं इंजेक्टर्स की तरफ, शायद उसकी नोजल्स की सर्विस होनी हो। आप इंजन किस हालत में है, क्या उसका कंप्रेशन अच्छा है, या उसके अंदर सिलेंडर और पिस्टन के बीच में अब प्ले है, या वाल्व हम्म की सीट्स लीक कर रही हैं जिसकी वजह से कंबशन स्टे नहीं कर रहा आपके चेम्बर के अंदर। हम्म ये सारी चीजें मतलब बेस्ड ऑन हाउ ओल्ड एंड हाउ वेल और अनवेल द कार इज, आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी हैम्पर होती है। तो are there multiple legal ways of importing a गाड़ी, और उसमें कोई efficiencies और duties वगैरह का कोई फ़र्क है या एक ही तरीका है? If so, तो वो तरीका in a concise form वो क्या है? इंपोर्ट करने के दो मेन रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप गिफ्ट स्कीम में गाड़ी लेके आए, स्लैश आप बैगेज पर्सनल बैगेज स्कीम में गाड़ी लेके आए। Yeah. पर्सनल बैगेज में यह है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पाकिस्तान से बाहर हो, किसी और मुल्क में रिजाइड करते हो, तो यू आर एलिजिबल टू ब्रिंग अ कार इन पर्सनल बैगेज। इनके इंपोर्ट ड्यूटीज के रेट्स रिलेटिवली कम है, जीरो नहीं है। एंड देन देयर इज दिस रेगुलर चैनल। अच्छा, जितनी भी तरह की गाड़ी इंपोर्ट होनी हो, चाहे वो इंपोर्ट टू गिफ्ट स्कीम हो या पर्सनल बैगेज हो या रेगुलर स्कीम हो, कोई भी गाड़ी 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती, Okay. Okay. ये गिवन है। तो अभी हम 2020 के अगस्त में बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हम 2017 से पुरानी गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर है वो 17 की गाड़ी वहीं से महंगी मिलेगी, फिर यहाँ आएगी, फिर उस पर इंजन सीसी के हिसाब से ड्यूटीज फिक्स्ड हैं, आप चाहे कुछ भी उठा लें। सो इट्स एडवाइजेबल टू ब्रिंग अ 1.5 सिविक टर्बो फ्रॉम अब्रॉड Hmm. एंड नॉट अ 1.8 बेसिक टर्बो, क्योंकि ड्यूटी 1.8 पे ज़्यादा लगेगी जबकि गाड़ी ज़्यादा सुपीरियर 1.5 टर्बो है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट एंड इंपोर्ट द कार अकॉर्डिंगली। Right. अच्छा, हाइब्रिड्स की ड्यूटीज रिलेटिवली उससे भी कम है। Hmm. तो ये है ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू इम्पोर्ट अ कार। बाकी गाड़ी इंपोर्ट कैसे करनी है, यहाँ मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो आपको लाइव ऑक्शन दिखाते हैं, आप सामने बैठ जाएं उनके, यू सिलेक्ट योर कार योरसेल्फ, वो आपको मंगवा के देंगे गाड़ी, वेस्ट वॉफ पे या जिधर भी पोर्ट पे आ रही है वहां से छुड़ा के देंगे। अच्छा, ये जितने भी ड्यूटी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं ये सब बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड और एक रेगुलराइज्ड पैटर्न है, कुछ जिसमें आगे पीछे ज्यादा होता नहीं है, सिवाय अंडर द टेबल कुछ अगर काम आपको जल्दी कराने हो तो वेज ऑफ डूइंग बिजनेस इन Hmm. पाकिस्तान। Hmm. बाकी आप अपने एजेंट को, क्लियरिंग एजेंट को आप कुछ चार्जेस देते हैं और आपकी गाड़ी इंपोर्ट हो जाती है। Right. कोई इतना तरीका बड़ा बहुत चक्कर नहीं है, standardized ही है. और ड्यूटीज भी फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी आएगी तो वो देखेंगे तो बोलेंगे अरे इतनी खूबसूरत गाड़ी है Hmm. तो हम इसकी ड्यूटी बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। दो तरह की ड्यूटीज होती हैं, CKD और CBU। CKD इज कम्प्लीटली नॉकडाउन एंड CBU इज कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट। तो CBU इज एक्सपेंसिव, CKD जो कि एक्सीडेंटेड होती हैं या चॉप्ड होती हैं या स्पेयर पार्ट्स डिसमेंटल होके आ रही होती हैं, वो गाड़ियाँ सस्ती होती हैं। Obviously. Okay. फिर रमीज का सवाल था कि वो EVs का सवाल कि are people interested in buying EVs in Pakistan? क्या options हैं apart from some Japanese cars? EVs की popularity है पाकिस्तान में, बढ़ रही है, आई feasible है? बिलीव ये हाइब्रिड की बात नहीं कर रहे और ये EVs Full की EVs, बात हाँ हाँ हाँ. क्योंकि टिपिकल Electric फुल vehicles, fully electric. हाँ, तो मैं यहाँ पे i8 देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऑडी e-tron लॉन्च हो गई है। ऑडी e-tron हाँ. आप घर में आके स्टेशन लगा के जाते हैं, जो भी आपके पावर मीटर्स वगैरह केबलिंग चेंज करनी होती है वो करवाते हैं और चार्जिंग स्टेशन आपके घर में इंस्टॉल करके जाते हैं। अच्छा, मैंने कहीं कहीं मैं पढ़ा था कि कुछ सिलेक्टिव PSO स्टेशन के ऊपर इन्होंने EV चार्जिंग पोर्ट्स लगा दिए, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में सीन है EV But व्हीकल्स का। ideally, if we're being honest, घर होना ज़रूरी है जिसकी पार्किंग, गैराज या ड्राइववे में आप एक पोर्ट लगा सकें। बेशक आप e-tron ना लें, वो ना लें, बट यू नीड बेसिकली फ़िलहाल आपके पास एक कंसिस्टेंट एक चार्जिंग की जगह होनी चाहिए।
जो कि अपार्टमेंट की पार्किंग में मिलना ज़रा मुश्किल है, तो आपके घर में जगह हो तो वो फीजिबल है, क्योंकि फ्यूलिंग स्टेशन पे जाके अभी फास्ट चार्जिंग जितनी भी फास्ट हो जाए, उस लेवल पे हम नहीं आए कि जैसे हम Hyundai की Ioniq की बात कर रहे थे कि आप बस PSO के पास हम्म जाके खड़ी कर दो वो चार्ज हो जाए, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम अभी भी। हम्म तो आई वुड से डॉल्मेन डॉल्मेन के पार्किंग लॉट में लगे थे, BMW वालों ने लगाए थे चार्जिंग अच्छा स्टेशन, बट आई बिलीव इट वाज मोर ऑफ एन मार्केटिंग। हाँ एन एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केटिंग पर्पसेस। i8 मैंने कुछ 2-3 दफा खड़ी हुई देखी वहां पे, हाँ मगर i8 कोई कितना रेगुलरली यूज करेगा, एक छोटी सी गाड़ी है, वाकई। और फैंसी है, आप ये वर्क आई पर्पसेस के लिए तो कम्यूट नहीं करेंगे। आई ऑडी एट और ई-ट्रॉन्स नजर आ रही हैं, वो बड़े मजे की बात है। बट मैंने वैसे पता e-trons कराया itself also are not like आम आदमी वाली गाड़ी ना, स्पेशली इन हाँ पाकिस्तान। आम आदमी वाली गाड़ी नहीं है, मगर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि मतलब पीक आवर्स में इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग वर्क पर्पसेस के लिए या रेगुलर कम्यूट के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हाँ कि हाँ सिर्फ ट्रैक पे लाने के लिए या वीकेंड्स के लिए यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। या मैंने पूरी पूरी फैमिलीज ई ट्रॉन से बैठी हुई देखी हैं स्पेशली या अगर यूजिंग आपके देयर घर कार। में चार्जिंग फैसिलिटीज हैं और गाड़ी की रेंज इज लाइक 300 हम्म माइल्स, तो हम्म सिटी के अंदर की ड्राइविंग तो हो ही जाएगी। बट आई एम श्योर कि अगर ये आगे जाके ये निसान लीफ वगैरह आए विच आर मच मोर अफोर्डेबल, छोटू इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। अच्छा, वी ऑलरेडी हैव निसान लीफ इन पाकिस्तान। अच्छा हाँ, ये इम्पोर्ट हुई थी हाँ और लोगों ने बड़ी खुशी खुशी चलाई। जो लोग सही मेंटेन कर पा रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर कार्स। जो लोग नहीं मेंटेन कर पाए, वो बड़ी बुराइयां कर रहे हैं इस गाड़ी की। ऑब्वियसली वी डोंट हैव द राइट पीपल टू रिपेयर दोस कार्स। नॉट हमारे येट पास नॉट येट हाँ प्रियस और एक्वास और ये हाइब्रिड्स इतनी आई कि हम इनमें तो जबरदस्त काम करने शुरू हो गए, मगर हम्म निसान लीव्स कम है अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू मेंटेन अ निसान लीफ इन पाकिस्तान। इसके अलावा शुमाइल का सवाल ये भी था कि हाई वैल्यू गाड़ियाँ यानी कि 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई घुसना चाहे तो हाँ, इनमें इज इट लाइक अ पॉजिटिव सिचुएशन? yes, it is a very positive situation. I have a success story with me. I have a customer of mine, 3 साल पहले उन्होंने प्राडो ली थी 4.0 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, 2010 का मॉडल, 72 या 73 का लिया था, और करंटली वो 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख की गाड़ी है। उन्होंने इस्तेमाल भी की, उन्होंने चलाई भी, मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार किलोमीटर इस्तेमाल किया, मगर उसके पैसे कितने ज़्यादा बढ़े हैं। मतलब आप कोई भी डिवैल्यूएशन के इस पे फैक्टर्स लगा लें, मुझे नहीं लगता कि ये फिर भी कोई नुकसानदेह डील है। और दुनिया भर में लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए गाड़ियों को रखते भी नहीं है। मतलब दुनिया भर में लोग गोल्ड रखते हैं, लोग डॉलर्स रखते हैं, हमारे यहाँ लोग गाड़ियां रखते हैं वाकई में। दे गैराज दीज कार्स और निकालते हैं 2-2 3-3 साल के बाद और जबरदस्त पैसों में आगे बेचते सही ज़बरदस्त है। आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ आवर क्वेश्चंस, और मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा, और आई थिंक ऑल्सो द एंड ऑफ द एपिसोड। काफ़ी हमने लंबी चौड़ी बातचीत कर ली, बट जैसे मैं एक हैं। दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि द टॉपिक वाज वर्थ इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने इतनी ख़तरनाक सिचुएशन में, जहाँ कराची में सुना है एक्सट्रीम बारिशें एक दफ़ा फिर शुरू हो गई हैं, आज वीडियोस घूम रही हैं, वो जो है जौहर में कोई उसके साथ कोई हाँ, लैंडस्लाइडिंग हुई है लैंडस्लाइडिंग, माउंटेन्स गाड़ियों पे। के ऊपर गिर गए हैं पत्थर, पता नहीं आगा हाँ, खान में पानी जमा हुआ हुआ है। खैर, बट थैंक यू फॉर योर टाइम शकीब। आई लव्ड बीइंग ऑन दिस सेशन। हाँ बिल्कुल, और मेरा भी ऑनेस्टली बहुत ये अरसे इतना से इतना इरादा था। कैंडिड और इतना इनफॉर्मल आज तक किसी ने एसकेएमएस को या मुझे ना जानने की कोशिश की, और ना मुझे ये मौका मिला कि आई कुड शो ऑफ मेरे हाँ कलेक्शंस ऑफ पुरानी चीजें। दोस्ती यारी मेरी तुम्हारी तो चलो बहुत पहले से है और बहुत सॉलिड है, बट बियॉन्ड दैट पॉडकास्ट के नज़रिए से भी मेरे ख्याल से दिस वाज ऑलवेज समथिंग दैट आई हैड सम इंटेंशन ऑफ डूइंग जब से हमने इंटरव्यूज़ करना शुरू किए थे। तो आई एम ग्लैड वी कुड मेक दिस हैपन, और होपफुली देखने वाले सुनने वालों को भी काफ़ी इंस्पिरेशन, फ़ायदे की बातें सब कुछ सुनने को मिली होंगी। शकीब, अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे, SKMS तो चलो फेसबुक पे है, तुम कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस रखते हो कि लोग डायरेक्टली तुम्हें तंग करें, या डू यू वांट इट टू बी थ्रू SKMS? नहीं नहीं, एसकेएमएस के थ्रू करना है, एसकेएमएस के थ्रू करें डायरेक्ट। मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है, मुझे इनबॉक्स करें, मैसेज पे बात करें, नो सही वरीज। सही सही। शकीब खान, आपका नाम है शकीब उज़्ज़मान खान, एट द मॉल अपर ऑन ट्विटर, रिजवान पहलवान, सरखेल 7 खान, मार्क ग्रुप अकाउंट TPR Pod. I hope you guys enjoyed this conversation as much as we did.
और I hope you all got to learn something from it. Yeah, we'll be back I guess next week at some point. मुझे नहीं पता क्या एपिसोड होगी, but Shakib, thank you very much once again for coming. I think we'll end it My here. pleasure, my pleasure. It's an honor for me to be on this session, and I would really love to come back again on this session. मुझे जरूर. मतलब I don't want this to end. हाँ, Seriously. हमारे हर गेस्ट से फिर हमारी यही दरख्वास्त होती है कि अच्छा चलें अब आप एक दफ़ा आ गए ना, आपकी स्टोरी हमने डिस्कस कर ली, बट आगे किसी और की स्टोरी के टाइम पे अगर हमें आपकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हुई तो हम आपको कॉल बैक कर लेंगे, ये ऐसे ही बैठा के हाँ, एपिसोड के लिए. anytime. ठीक है जी, Thank you. मैं रिकॉर्डिंग पे यहीं बंद करता हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वाचिंग. देयर हैव बीन सम टेक्निकल इश्यूज, कभी मेरी वीडियो बीच में रुकी होगी नहीं रुकी होगी, बट क्या करें, ऑडियो चलता रहा. ओके जी, खुदा हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.